This is Somna, and today we are gonna revise the very first chapter of our class 10. Tomorrow is my board too, so I was just revising those all chapters, and you can see here it is 12:30. I'm gonna complete the whole SSD till you can say 5. Okay, so in our very first chapter, the first topic is French Revolution. So in French Revolution, there was you can say French revolutionaries, and in our textbook, the very first uh, image, that is this one. तो इसकी जो राइडर थे जो जिसने बनाया था इसको सो दैट वाज फ्रेडरिक सोरियो ही वाज अ पेंटर ऑब्वियसली ओके and he did not support it like monarchy obviously they are showing these crowns and etc here that was of monarch and these angels and Jesus is blessing these all children of them and you can see here that these two countries are already get republic and they are ahead of this statue of liberty. That is it for this and here is absolutist and utopian. So this is really important and absolutist meaning the like जो सारी की सारी पावर होगी ना देन वो एक ही लोग के पास रहेगी जस्ट एज अ मोनार्क ओके जैसे किंग के पास सारी पावर रहती थी सो दैट इज इट ओके एंड देयर इज उटोपियन सो ये जो विजन था जो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था जस्ट एज here is also written it like unlikely to ever exist just as you know थोड़े वो बच्चे वो करते हैं अपना कि चॉकलेट वाली वो पूरी दुनिया तो दैट डो नॉट रिएक्ट दिस सो दैट इज यू कैन से एग्जांपल ऑफ यूटोपियन विजन एंड अब हमारा है फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ओके तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को कलेक्टिव आइडेंटिटी लानी थी अमंग द फ्रेंच सिटीजन एंड हाउ डू दे गेट इट देन the ideas of La Patrie and Les Citoyens. La Patrie means fatherland and Les Citoyens means the citizen. And ideas of them really help them to get the collective identity. And here you can see that State General was here. State General was changed into National Assembly. Its name, okay. And after that, there was uniform laws okay and they remember those dead army and etc you can see martyrs commemorated okay and the tricolor flag also वहाँ पे folk tale जो लोक कथाएं हैं that was applied there these really helped them to get collective identity among the French citizens. And वहाँ पे एक you can say there was a Jacobin club. Okay, those members of Jacobin clubs they wanted to abolish the monarchy, as you can see here too, to replace the autocratic regimes. Okay, तो इसके जो members थे इस members were students and you can see educated middle class people okay and here is one more important thing that is Napoleonic Code 1804 so इसमें एक तो इक्वालिटी मिल रही थी और abolish the privileges over birth and abolish feudal system on serfdom also and you can say the disadvantages were that forced army you can say he forced the village people also others to join the army because he wanted to get rule over a whole world he wanted an army too so he wanted army
as well as the disadvantage was that there was mixed, you can say mixed reaction. Some people were happy, some were really disappointed. So there was also increased in taxation as he used to fight a lot. So it was increase in taxation. Also a lot of things, but here is mentioned this. Okay. अब इसके बाद here is हैब्सबर्ग एम्पायर. तो हैब्सबर्ग एम्पायर में दो लोग रहते थे, एक ऑटोक्रेट्स एंड एक पीजेंट्स. Peasants are the farmers, okay, and autocrates were rich. Autocrates की low population थी as they were rich, and rich people are really less already, and the peasants were high in population. The autocrates used to French language whenever there was anything like they wanted to use it, and can say जब कोई अच्छी like formal बातें होती थी then peasants worked under the rich, okay, this autocrat. Also ये जो होते थे ऑटोक्रेट्स ये हमेशा लाइक कनेक्शन मांग के रखते थे, सच एज वो लाइक मैरी करते थे अपनी डॉटर्स को कि लाइक अच्छी फैमिली से, लाइक एक ऑटोक्रेट ने दूसरे ऑटोक्रेट से बनाया, देन रिलेशन बिल्ड हुआ दोनों का. सो वो हमेशा ही रिच रहते थे. फिर देन हियर इज लिबरलिज्म. ओके, सो लिबरलिज्म जो था वो दो तरीके से दिखता था, एक तो इकोनॉमिकली और दूसरा पॉलिटिकली. और जो पॉलिटिकली था ना वो दे वांटेड लाइक उनको फ्रीडम की इंडिविजुअल की फ्रीडम चाहिए थी एंड इक्वालिटी चाहिए थी. एंड देन इन पॉलिटिकल वे दे वांटेड टू एंड द ऑटोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए थी, सच एज कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चाहिए था उन्हें जो रिप्रेजेंट करे कि वो कर क्या रही है. और इकोनॉमिकली था लाइक अबॉलिश ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बहुत ज़्यादा लगता था उस पे ट्रेड्स वगैरह पे. एंड जो फ्रीडम और मार्केट थी वो भी उन लोगों को चाहिए थी इकोनॉमिकली जो लिबरलिज्म था. ओके, और यहाँ पे एक और चीज़ मेंशन है दैट इज जो एली था वो क्लोथ को कह रहे थे उसको. और लाइक ऑब्स्टेकल्स वर लाइक जो वो थे ना मेजरमेंट्स वो हर जगह ही चेंज थे. लाइक तुमको 2 मीटर का यहाँ चाहिए तो 2 मीटर का जैसे रियल वो है तो तुम्हें वहाँ दूसरे घर जाके वो 4 मीटर का हो गया, तीसरे घर जाके 1 ही सेंटीमीटर का रह गया. ऐसे बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स मिल रहे थे उनको. फिर जॉल्वरीन आया. जॉल्वरीन 1834 में बना था, रशिया का, और एक कस्टम यूनियन था. ओके, और ये जॉल्वरीन ने पता क्या किया, लाइक इट अबॉलिश द ट्रैफिक बैरियर्स, ठीक है, और रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी. लाइक बहुत सारे होंगे ना तो 30 over 30 to 2. Okay, and that is it for Zolvery. और यहाँ पे आई गेस हमारे 2 और 3 पेजेस है ना ख़त्म हुए हैं. हाँ, आई एम जस्ट चेकिंग सो दैट कुछ लाइक छोटे ना, मेरा भी एंड तुम्हारा भी. ओके, 4 to 13 पेजेस आर कंप्लीटेड राइट नाउ. एंड यहाँ पे अभी रिवॉल्यूशनरीज का है, ठीक है. तो जो रिवॉल्यूशनरी थे उसमें जिशब मैज़िनी आए थे, ठीक है. इनको ना एग्जाइल हो गए थे ये जब इन्होंने लिगुइरिया में इन्होंने वो किया था रिवॉल्यूशन. फिर से तो इनको एग्जाइल कर दिया गया था वहाँ से टू अटेम्प्ट दी रिवॉल्यूशन, ठीक है. एंड वहाँ पे था ये मेंबर ऑफ सीक्रेट कार्बोनरी भी थे और ये 1807 में वो बॉर्न हुए थे और ऑब्वियसली अपोज कर रहे थे ट्रीटी ऑफ वियना को. और हाँ, ट्रीटी ऑफ वियना इज़ रियल इम्पॉर्टेंट. ओके, अभी मैं बता रही हूँ उसके बारे में. सो
already he was a member of secret society that was carbonary. और यहाँ पे पता है he made the secret society such as in Italy he made in Italy he made Marseilles, and in Europe he made Brain, BERENE. I don't know if I'm pronouncing it right, but it was, you can like remember it, IMEP. Okay, I for Italy, for Marseilles, Italy में Marseilles, and जो IMEB तो यूरोप में ब्रीनी, ओके whatever it is. तो ट्रीटी ऑफ वियना, ठीक है। तो जो पावर वाले थे ना, जो लाइक जो भी वो थी कंट्रीज या फिर जो भी, तो वो उन्होंने मिलके जो ये नेपोलियन को हटाया था ना, वो थी ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। तो यू कैन रिमेंबर इट लाइक एज पर्प, PARP, पर्प। सो फ्रॉम P it is Prussia, A Austria, and R Russia, and B for Britain. Okay. So इस ट्रीटी ऑफ वियना का नेम वियना इसलिए रखा गया बिकॉज ये जो वो थे ना पावर ही वियना पे मिले थे। और इन लोगों ने जो नेपोलियन ने जो पहले वो बनाए थे ना, जैसे ट्रेड बैरियर को अबॉलिश किया था, सर्फ लॉन्ग को अबॉलिश किया था, ये सब उनको रिस्टोर करने थे बिकॉज उन्होंने हटाए थे ऑब्वियसली। तो रिस्टोर अ बर्बन चेंजेस, ठीक है, इन लोगों ने किया था। और सीरीज ऑफ स्टेट्स, हाँ, series of states were set up around the French boundary, like this is France, this whole is France। तो यहाँ पे लाइक ऐसा करके पूरी बाउंड्री बनाती, लाइक ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ये बाउंड्री, ठीक। तो यू कैन रिमेम्बर कि जो फ्रेंच था, मतलब जो फ्रांस था, वो तो फ्रांस में उन्होंने नॉर्थ साइड में नीदरलैंड रख रखा था उनकी बाउंड्री पे, बस इतना करना। एंड जो 39 स्टेट्स थी जो नेपोलियन ने बनाए थे, दे वर रियली लाइक उनको टच भी नहीं करा था, दे वर लेफ्ट अनटच्ड, ओके। और देन हियर इज मेटरनिक, यहाँ पे इन लोगों ने सेइंग्स भी रखी थी ना, लाइक मोस्ट डेंजरस एनिमी टू आवर सोशल ऑर्डर। ये ड्यूक मेटरनिक ने कहा था जोसेफ मैज़नी के लिए, ये जिनुआ में बॉर्न हुआ था, एंड जोसेफ मैज़नी जिनुआ में बॉर्न हुआ था, ओके। और जो फ्रांस नीजेस और यूरोप गेट्स कोल्ड, ये भी इसी ने बोला था। फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आई, तो ग्रीक को ये वेस्टर्न यूरोप थे ना जो एग्जाइल, और जो एग्जाइल में ग्रीक लोग भेजे गए थे, इन लोगों ने सपोर्ट किया था ये रिवॉल्यूशन पे हल्का, मतलब नेशनलिज्म थोड़ा था। और जो क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है ना, वो ग्रीक को ही बोला गया था। एक यहाँ पर लॉर्ड बायरन है, इंग्लिश पोएट थे, वो बाहर गए थे लाइक फाइट के लिए, तो वो मर गए ऐसे ही, उन्हें फीवर आ गया, वैसे मर गए बिना लड़ाई वड़ाई कुछ भी करके। फिर यहाँ का ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल भी बना था। ये जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल था ना, इसने ग्रीक को इंडिपेंडेंस साबित किया था कि हाँ अब ग्रीक जो है वो इंडिपेंडेंट है और अब इस पर कोई गुलामी नहीं करेगा। और यहाँ पे एक रोमांटिज्म भी है। तो ये जो रोमांटिज्म था ना, ये कल्चरल मूवमेंट था ओवर द नेशनलिज्म, ठीक है। और नेशनलिज्म थ्रू द आर्ट, जो आर्ट थी वो बोल सकते हैं कि लाइक उसमें आर्ट में एक तो लैंग्वेजेस लोग लेते थे कि लैंग्वेज हमने ले ली, और फोल्क टेल्स और लोक कथाएं जो होती है, एंड जो डांस होता था, इन तीन से इन लोगों ने लाइक पूरा कल्चर बदल दिया ना, ठीक है। जैसे एक पोलैंड में भी हुआ था किस्सा कि जो थोड़े बहुत लोग थे वहाँ पे, कि पोलैंड पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, आई गेस ब्रिटेन ने,
तो जब पोलैंड था वो अपनी पॉलिश लैंग्वेज और पॉलिश जो फोल टेल थी, साथ में पॉलिश जो ड्रेस थी, उनको यूज़ कर रहा था। और नहीं नहीं, रशिया ने किया था ये। जो ये लोग जो थे ना, इन लोगों ने लैंग्वेज यूज़ करी, और लैंग्वेज यूज जब करते थे तो वो था कि ऐसे समझते थे जो रशिया के पीपल थे कि वो अपोज कर रहे हैं उनको, कि अपोज कर दिया ये पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करके, क्योंकि वहाँ पे बैन थी, उन लोगों ने कभी बैन कर रखी थी उसको। लेकिन बस एक पेज बचा है, एंड इस बुक का आई गेस इस बुक के यू कैन से 5 पेजेस बचे हैं। ओके, सो लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक, हाफ चैप्टर कंप्लीटेड है। एंड 1850s के साइड में 1815 के साइड में 50s के साइड में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, और वहाँ पे पॉवर्टी देखने को मिल रही थी, बैड हार्वेस्ट हो गया, ओवर क्राउडेड स्लम्स जो बहुत झोपड़पट्टी वाले होते ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बिकॉज वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हद से ज़्यादा हो गया। आज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह लोग ढूंढने लगे एम्प्लॉयमेंट वगैरह, कुछ किसी को नहीं मिला, बिकॉज वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन था, और यूरोप जो था ना वो इम्पोर्ट भेजा जा रहा था उन लोगों को। और यहाँ लाइक बाहर से चीज़ आ रही है और इंडस्ट्री की मिली हुई, और वो भी है सस्ती भी और अच्छी क्वालिटी का भी, तो कोई लेगा ही नहीं उनसे ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ पर एक्सपेंसिव भी होती थी ना। तो जो 1850s में एक और चीज़ हुई, जो 21 अबव थे, ये 1848 वाली साइड की बात है, ठीक है, इस पर मेंशन नहीं, मुझे याद है, देखो। ओके, सो ये जो यहाँ पे स्टिफ कंपटीशन था, एज मैंने बताया ना तुमको भी कि इंडस्ट्री में भी बनता था और ये वो, तो ये स्टिफ कंपटीशन था। और जो 21 के अबव थे उनको सफरेज का राइट मिल रहा था, लाइक वोट, राइट टू वोट सफरेज होता है, ठीक। और जो सिलेसिया था वो उन्होंने भी रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर जो थे ना उनके, वो उनको रुपए नहीं दे रहे, मतलब रुपए नहीं, मनी हो सकता है, करेंसी नहीं, मनी नहीं दे रहे थे, लाइक वो ज़्यादा काम करा के कम मनी दे रहे थे। तो इन लोगों ने बिल्कुल वो हल्ला बोल मचा दिया, एंड जो 11 वीवर्स थे ना वो 11 वीवर्स उड़ा दिए गए वहाँ के। और जो जर्मन है, अब यहाँ पर जर्मन वाला टॉपिक आया, तो यहाँ पे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली थी, इन लोगों ने लाइक इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बनाए, 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव बनाए, जो अपने चले गए सेंट पॉल वाली उसमें चर्च में, ठीक। और फ्रैंकफर्ट, हाँ, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में सेंट पॉल था, सारे हो गैदर हो गए, तो 831 इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव थे, दे गैदर एंड दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये लोग जो हैं ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन अपनाएंगे। लेकिन हाँ, वो लोग जो होंगे ना, लाइक यहाँ पे वो हैं और यहाँ पे मोनार्की रहेगी, लेकिन वो उसके अंडर में काम करेंगे। ओके, दैट वाज इट फॉर दिस, ठीक है। और जो किंग थे फ्रेडरिक विलियम IV, इन्होंने मना कर दिया कि वो कुछ नहीं देंगे, सब उठा के ले जाओ। उन्होंने जो भी बनाया था रूल वगैरह कॉन्स्टिट्यूशन, उन्हें हटा दिया गया, कुछ नहीं माना गया, उन्होंने मुतकतई रिजेक्ट कर दिया। और किंग ऑफ रशिया ने ना, और जो वो विलियम थे ना, फ्रेडरिक विलियम IV, तो इनने मना कर दिया। एक तो ऊपर से वो उनके फेवर में चले गए मोनार्की वगैरह के, कि मोनार्की ही रखो हमेशा। और यहाँ पे वुमेन्स ने भी अपने राइट मांगे थे, तो जो वुमेन्स थी उन एक कोर्ट जैसा होता था ना, तो वो कोर्ट में एज अ ऑब्जर्वर, लाइक वो बोलेंगे कुछ भी नहीं, केवल देखेंगे कि हो क्या रहा है, ठीक। लाइक वो गवाह भी हो सकते थे कि हाँ ये हुआ था, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, आई डोंट नो।
सो रशिया और जो हैब्सबर्ग थी ना, लाइक इतने ज़्यादा रेवोल्यूशन हुए पड़े, तो इन लोगों ने लाइक थोड़ी बहुत चीज़ें दे दी, और जो रिवॉल्यूशनरी थे वो बहुत खुश हो गए एकदम। तो इन्होंने जो ये जो रशिया और हैब्सबर्ग थी ना, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी दे दी। जैसे सर्फडॉम और बॉन्डेड लेबर अबॉलिश कर दिए गए कि हम बंधुआ मजदूर नहीं बनेंगे, और जो सर्फडॉम थी वो भी अबॉलिश कर दी गई। फिर यहाँ पे एक प्रशिया का जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी है, ये वाला लास्ट टॉपिक है, एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, फिर एलिगरी वगैरह, और यही बस बालकन्स का एंड द टॉपिक एंड दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड। ठीक, तो जो लिबरल इनिशिएटिव होते थे, इन्होंने ये जो थे, इनको ऑप्रेस किया गया था। एक तो जंकर्स ने, जंकर्स याद रखना, जंकर्स होते थे लाइक बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स वगैरह की, उनके 50 वगैरह कितने एकड़ की खेती है, तो वो जंकर्स कहलाते थे, बिग लैंड ओनर्स। ठीक, जिसको याद रखना। जंकर्स ने और मिलिट्री सबने मिलके इनको मतलब मना कर रखा था, कि मतलब सप्रेस कर रहे थे, दबा रहे थे कि मत तुम लोग आगे आओ। ठीक, और जो प्रशिया था, इसने लीडरशिप ले ली कि वो ही सब करेगा। ठीक, और जो ऑटो वन बिस्मार्क थे, वो थे चीफ मिनिस्टर प्रशिया के। ठीक, और इन्होंने हेल्प ली आर्मी की, ये तो ऑब्वियसली है ना। और इन्होंने लाइक 7 साल हो गए थे, ओवर 7 years, 3 बनी थी, लाइक 3 वॉर्स हुई थी। ठीक, 3 वॉर हुई, और इसमें रुपए वगैरह बहुत लगे होंगे, तो उसमें भी टैक्सेशन बढ़ाई होगा। तो 3 वॉर्स इन्होंने जीती नहीं, लाइक एंड में आके वो जीत गए आखिरकार। 3 वॉर हुई हैं और लास्ट में आके वो जीत गए। ठीक, और यही होगा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और इन 1871 जो कैसियर विलियम थे, कैसियर विलियम वन, ये वर्साइलीज में वो बना दिए गए थे किंग। ठीक, एंड फिर यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी तो हट गया, मतलब हट नहीं गया, पूरा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो गया, एज वहाँ पे कैसियर विलियम हो गए थे वो राजा, और जो प्रशिया था वो वॉर भी जीत गया। ठीक, और फिर इटली की बात आई, तो इटली था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, 3 पार्ट्स में, लाइक इतना बड़ा इटली है, जो इतना पार्ट था, लाइक इतना पार्ट, ये हो गया नॉर्थ, दिस वुड बी नॉर्थ, दिस वुड बी सेंटर, एंड दिस वुड बी साउथ। ओके, तो ये जो नॉर्दर्न पार्ट था ना, नॉर्दर्न पार्ट था, ये दोनों, क्योंकि देखो जो मैंने बताया भाई, सेंटर में जो था, जो सेंटर का मामला था ना, वो पोप संभालता था। जो साउदर्न पार्ट था वो उसको संभालता था बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, क्योंकि साउदर्न और स्पेन ये मैचिंग था, तो मैंने याद करा। एंड जो नॉर्दर्न वाला तो बिल्कुल मैच ही नहीं होता, नॉर्दर्न का ऑस्ट्रियन है, तो ऑस्ट्रियन लास्ट में एन आ रहा है, तो इसको नॉर्थ से याद कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गई इटली। ओके, लाइक दिस वुड बी इटली। तो ये हो गया वो वाला सेंटर वाला पार्ट। तो सेंटर वाला जो पार्ट था वो पोप के हाथ में था, एंड जो नॉर्थ पार्ट था, नॉर्दर्न पार्ट था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के उसमें अंडर में, एंड जो ये वाला जो पार्ट था इधर साइड का साउदर्न पार्ट, वो था बर्बन किंग ऑफ स्पेन के हाथ में। ये हो गए 3 पार्ट्स। यहाँ पे जेसस मैरिनी ने भी बहुत हेल्प करने की कोशिश करी, लेकिन वो मर गए, हेल्प नहीं कर पाए, मरे नहीं, बट फेल हो गए, एक तरीके से बिल्कुल फेल हो गए, कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वही टेंशन बहुत बढ़ रही थी। फिर जो सार्डिनिया पीडमोंट में जो विक्टर इमैनुअल 3 थे, विक्टर इमैनुअल केवल 3 भी मत याद करो, विक्टर इमैनुअल थे जो ना सार्डिनिया पीडमोंट में, तो इन्होंने बहुत हेल्प करी। फिर ये जो यहाँ पे एक और बंदे आए हैं, काउंट दे कैबूर, तो ये जो काउंट दे कैबूर थे, ये उसके सार्डिनिया पीडमोंट वगैरह के ये थे, लाइक जो इटली में थे ना ये, तो सार्डिनिया पीडमोंट के चीफ मिनिस्टर थे काउंट दे कैबूर, और ये ना रिवॉल्यूशनरी थे ना डेमोक्रेट थे। देन
जो फ्रेंच थे, मतलब ये काउंट दे कैबूल, ये फ्रेंच बहुत ज़्यादा अच्छे से बोलते थे देन इटली, क्योंकि इटली के ही थे और फ्रेंच इटली बोल नहीं पाते थे और फ्रेंच उन्हें बहुत अच्छी आती थी। तो फ्रेंच वाले जो पीपल थे उनसे बहुत ज़्यादा जॉल्व रहते थे, वैसे खुश रहते थे। जो पोप था, जो मिडल में जो था, उनसे सरेंडर कर दिया था। ये साउदर्न पार्ट वगैरह के सब हार गए, हम तो सरेंडर ही कर देते, सही रहेगा। फिर जो इटली के पीपल थे, इटली का उन्होंने नाम ही नहीं सुना था, इतने इनोसेंट थे वो। एंड जो कह सकते हैं कि जो इटली के जो पीपल थे उनको लगता था कोई ला टालिया वाली नेम की है, तो वो विक्टर इमैनुअल की बीवी है। एंड जो सारे लोग हैं ना, वो विक्टर इमैनुअल की बीवी को छुटाने के लिए, लाइक वो बहुत उसमें पेन में है, तो वो सब हटाने के लिए ये सब रेवोल्यूशन चल रहे हैं और उन्होंने भी बहुत हेल्प करी थी इसमें। लेकिन उन्होंने कभी नाम ही नहीं सुना था कि इटली में रहते हैं वो। तो जो ब्रिटेन था, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। तो बिफोर 80s वहाँ पे कोई ब्रिटेन नहीं था, तो ओनली इथनिक वॉज आइडेंटिफाइड। जैसे कोई इंग्लिश बोल रहा था तो वो थे द इंग्लिश, द फ्रेंच, द हिंदी, ऐसे करके चलते थे सब लोग वहाँ पे कि इथनिक वाले, जो कल्चर पे बेस्ड होता था। एंड जो स्कॉटलैंड था वो सप्रेस हो रहा था बहुत ज़्यादा। जो ब्रिटेन था वो प्रोहिबिट कर रहा था उनको लैंग्वेज यूज़ करने के लिए, अपनी स्कॉटिश वाली, और उनकी जो ड्रेस वगैरह थी वो भी उन्हें बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहा था कि मत यूज़ करो, कतई मत यूज़ करो। और जो न्यू सिंबल्स है ग्रेट ब्रिटेन की, यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन की वो हो रही है बात, उसकी यूनिफिकेशन की, तो उसमें जो ये जो कर रहे थे, यहाँ पे ब्रिटिश फ्लैग बन रहा था एक, क्या नेम था उसका, नेम था यूनियन जैक। ओके, एंड वहाँ पे नेशनल एंथम भी बना था, गॉड सेव आवर नोबल किंग। ठीक, ये वो है। और वहाँ पे भी बना था, फ्रांस में भी वो, लाइक बोल सकते हैं वहाँ पे बने थे, ट्राई कलर के फ्लैग बने थे और बहुत कुछ बना था वहाँ भी, एलेगरी वगैरह। अब यहाँ पे विजुअलाइजिंग द नेशन, यहाँ पे आ रही है एलेगरी की बात। जो एलेगरी होती थी वो पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करती थी। सच एस जो फ्रांस था उसकी जो एलेगरी क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियन मतलब नेम्ड हो गया, ठीक है, जैसे नामकरण हो गया, तो एलेगरी वॉज क्रिश्चियन एज मैरीन, MARIANNE, मैरीन। तो मैरीन की जो हुलिया था वो रेड कैप था, ट्राई कलर था, और जो कॉक एट थी उसकी, जो मुर्गे की जो वो होती है वैसी वाली, वो उसकी पहचान थी। ये जो एलिगरी थी ये आइडेंटिफाई कर दी थी कि पूरा नेशन को आइडेंटिफाई कर दी कि ये नेशन है, और जो पीपल थे वो लोग हैप्पी रहते थे उसको देख के कि हाँ वो कोई ना कोई है मेरे साथ, और नेशनल यूनिटी में ये हेल्प करती थी। और जर्मन की जर्मेनिया थी, इसने ओक लीव ले रखी थी और ओक लीव हीरोइज्म को रिप्रेजेंट करती है। इसके हाथ में स्वॉर्ड भी थी, पीछे से वो भी लाइटें वगैरह सब चल रही थी, वो आया फिर शो के। Here is the जर्मेनिया, ये ट्राई कलर का फ्लैग उठाई हुई है और जर्मेनिया का पोस्ट स्टैम्प भी है, ठीक। और यहाँ पे बाल्कन्स भी था, ये जो बाल्कन्स है इनके जो स्लेव्स थे वो ग्रीस हो गया, सर्बिया हो गया, बोस्निया हेर्जेगोविना, बल्गारिया और क्रोशिया। तो ये बाल्कन से ही ऑटोमन एम्पायर को होल्ड करके रखी थी। और ये जो बोस्निया हेर्जेगोविना, ग्रीस, क्रोशिया, सर्बिया, बुल्गारिया थे, जो स्लेव्स थे वो बाद में फ्री हो गए, धीरे धीरे करके छूटते चले गए अपने आप ही कि हमें चाहिए फ्रीडम, हमें चाहिए, हम पहले फ्री थे, तुमने हमें उठा लिया। तो ये सब करते थे। और जो रशिया और जर्मनी वगैरह थे इन्होंने ट्राई कर रहे थे बाल्कन्स के ऊपर पावर लेने की, क्योंकि बाल्कन्स हल्के हल्के उस टाइम पे थोड़े बहुत उनकी पावर कम होती जा रही थी। तो जो वो थे पावर्स पे, तो इन लोगों ने चाहा कि वो लोग लें अपनी पावर, कि बाल्कन्स पे भी उनका वो राज हो जाए, तो उन्होंने ये पावर लेनी चाहिए। एंड ये जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आके एंड हुआ। एंड आवर चैप्टर इज फिनिश टू।
here we go. And in less than, you can say in less than 30 minutes हमने chapter complete किया. And bye.